Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, our topic is to derive here first the formula for finding the area of the sector and segment of a circle, and after that we are going to apply and use this very concept for doing the exercise 12.2 dear students. So first of all, I would like to recall here the definition of the sector of the circle. How I have defined the sector of the circle? It is actually the circular region between the two radii and their corresponding arc. बेटा यहाँ पे हमने जो शेडर रीजन बनाया है, it is the sector of the circle. OAPB is the sector of the circle. Since the arc APB is minor arc, therefore OAPB is the minor sector and OAQB is the major sector because AQB is the major arc. And our job is to find out the algebraic formula for finding the area of such type of sectors. Similarly, after that, we will here find out the area of the segment. Dear students, what do you mean by the segment of the circle? It is the circular region between the chord and its corresponding arc. If the arc is minor, then the segment APB that I have shaded here, that's called a minor segment, and the unshaded region between the chord AB and the arc major arc AQB is called as the major segment. And we are going to derive here the formula and taught you the concept of how to find out the area of such type of segments, whether you have to find out the area of the segment or area of the sector. Dear students, जितने भी हमारे पास में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको अगर पूछा जाएगा सेक्टर का एरिया निकालिए या सेगमेंट का एरिया निकालिए, तो इट इज फॉर ग्रांटेड बाय डिफॉल्ट दैट कि वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर and area of the major sector. However, if it is mentioned there to find out the major sector area and minor major segment area, at that time you have to find out that. Okay? Otherwise, if it is not being asked, if it is not being mentioned in the question to find out the area of the major segment, then it is for granted you have to find out the area of the minor segment sector and area of the minor segment, dear students. So first of all, we will find here the area of the sector. We will find here how to find out the area of the sector. Because area of segment is totally expressible in terms of the area of the sector. So let us start, dear students. उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा? I will consider some circles here. This is first circle. Let me denote the same circle here. Let me draw the same circle one more here. सेम सर्कल यहाँ पे भी मैं बनाऊंगा. ओके बेटा, ये हमने 4 सर्कल यहाँ पे बनाए. अगर ये सर्कल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स हो गए. इसका सेंटर O, मान लीजिए इसका सेंटर भी O है, क्योंकि सेम सर्कल मैंने ड्रा किया यहाँ पे 4 बार, तो इनके सेंटर्स हम मान लेंगे O से ही डिनोट हो रहे हैं. ऑल्दो आज मैं प्लेन में कंसिडर करूंगा ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, लेकिन मान लीजिए अगर मैं लोकेशन ऑफ पॉइंट्स में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, देन ऑल दीज 4 circles will be having the same center. After that, dear students, I will take 2 pointers on the circumference of the circle, that is point A and point B, and I will take point P on the minor arc AB, and I will take the major point Q on the major arc AB. This APB is the minor arc and AQB is the major arc. Dear students, अगर मैं इस माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ दूंगा बाय मीन्स ऑफ 2 रेडिये, एक तो OA रेडिये और OB रेडिये. अब जरा बताइए, ये जो सर्कुलर रीजन है बिटवीन द 2 रेडिये एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग आर्क माइनर आर्क APB, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल बाय डेफिनेशन. देखिए बेटा, ये जो सेक्टर सर्कल के सेंटर पर ये दोनों रेडिये ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर ऑफ सर्कल, जो एंगल बनाते हैं सेंटर पर, अगर मैं इसको थीटा से डिनोट करूंगा, एंगल AOB को, एंगल AOB को
अगर मैं बेटा थीटा से डिनोट करूंगा तो इसको यहां पे बताया जाता है सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। याद रखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज द एंगल फॉर्मड बाय द रेडियस joining the end pointers of the arc with the center of the circle at the center. Since OA and OB are the radii joining the end pointers of the arc APB with the center of the circle, therefore angle AOB is nothing, that is called as the central angle of the sector OAPB. इसी तरीके से बेटा मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट ए को मैं यहीं पे रखूंगा बेटा फिक्स्ड, लेकिन पॉइंट बी बेटा मैं यहां पे नहीं ले लूंगा। आई विल लेट दिस आर्म ओबी ऑफ एंगल एओबी, मैं इसको रिवॉल्व करूंगा। यहां बेटा पॉइंट बी को मैं खिसकते खिसकते इस सर्कमफेरेंस के अलांग थोड़ा सा डाउन करूंगा, मतलब पॉइंट ए यहीं पे है बेटा, और पॉइंट बी को मैं बेटा यहां पे लाऊंगा, पॉइंट बी यहां पे लाऊंगा। सही बात। अब पॉइंट बी अपनी जगह पे है और पॉइंट क्यू भी अपनी जगह पे है। सही बात। अब जरा बताइए व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर दैट इज फॉर्मड बाय द आर्क एपीबी। ठीक है बेटा, उसके लिए मैं एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करूंगा। सही बात। वो आएगा बेटा सेक्टर ओ ए पी, ये मैं लिखूंगा B1, क्योंकि B यहां पे था, मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइड कराया अलोंग द सर्कमफेरेंस, तो B1 यहां पे आ गया। ये नई पोजीशन है B की, दैट्स व्हाई आई हैव डिनोटेड इट बाय B1 डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब जरा बताइए यहां पे जो सेंट्रल एंगल है वो क्या है बेटा, वो बेटा है AOB1। अब जो सेंट्रल एंगल है ना AOB1 बेटा मैं इसको डिनोट करूंगा θ1 से। पिछला वाला सेंट्रल एंगल थीटा था, अब ये θ1 है। अब जरा बताइए कि क्या θ1 स्मॉलर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ थीटा या ग्रेटर है। सर θ1 इज ग्रेटर देन थीटा, तो ऐसे लिखेंगे थीटा इज स्मॉलर देन θ1। अब जो यहाँ पे ये सेक्टर था OAPB, इसका जो एसोसिएटेड एरिया होगा, क्या वो बेटा इस सेक्टर के एरिया से कम होगा या ज्यादा होगा? किस सेक्टर के एरिया से? OAPB1 डेफिनेटली छोटा होगा, बिकॉज यहां से फिगर से ही पता चल रहा है ये एरिया इस रीजन का एरिया इस रीजन के एरिया से कम है, मतलब सेंट्रल एंगल इसका इस सेक्टर का कम है इसके सेंट्रल एंगल से, इस सेक्टर के सेंट्रल एंगल से, और इस सेक्टर का बेटा एरिया भी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मतलब अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया A1 है, तो जैसे थीटा इज लेस देन θ1, सिमिलरली A इज लेस देन A1। बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट A को फिर से बेटा यहीं पे रखूंगा और इस पॉइंट B को थोड़ा सा खिसकाऊंगा along the circumference of the circle with center O, और मैं इसकी नई पोजीशन थोड़ी सी डाउन कर दूंगा और यहां पे ले लूंगा बेटा मैं अब B2, यहां पे पॉइंट B2। असल में पॉइंट B की यहां पे पोजीशन थी, ठीक है बेटा, पॉइंट B यहां पे है, पॉइंट B यहां पे है, ठीक बेटा। तो पॉइंट B बेटा मैंने क्या किया, स्लाइड कराया अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और ये कहां पे आ गया बेटा, ये आ गया यहां पर, ठीक। अब जरा बताइए अगर मैं इस आर्क APB2 जो अब बन गई, पहले केस में आर्क थी APB, दूसरे केस में आर्क थी APB1, तीसरे केस में आर्क बन गई APB2। सही बात। अब बेटा सेंट्रल एंगल जो इस सेक्टर का बनेगा, जो कि सेक्टर बन रहा है बिकॉज ऑफ द आर्क APB2 एंड द रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस आर्क AO एंड B2O, ठीक है, वो सेक्टर ये है, इसका जो सेंट्रल एंगल है वो ये है। सही बात। इसका सेंट्रल एंगल ये था, इसका सेंट्रल एंगल बेटा ये है θ1, और इसका सेंट्रल एंगल AOB2 है, वो θ2 से डिनोट करेंगे। आप मुझे बता सकते हो ये जो थीटा है डेफिनेटली लेस देन θ1 है, और डेफिनेटली ये जो θ1 है ये भी यहां से फिगर से ही पता चल रहा है ये θ2 से बेटा कम है। अब जरा बताइए इसका एरिया A था, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया मान लीजिए एरिया है A2, ये जो एरिया A2 होगा दिस विल बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरिया A1, और वो बेटा ग्रेटर देन होगा A होगा, मतलब A विल बी लेस देन A1 एंड A1 विल बी लेस देन A2, यानी कि जो थीटा इंक्रीज हो रहा है,
थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा 1 था, यहाँ पे बेटा थीटा 2 था। आई मीन टू से दैट जो सेक्टर एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग, इन सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए को यहीं पे रखेंगे और जो पॉइंट बी था, बी को भी वहीं पे रखेंगे। जो पॉइंट बी था जिसको मैंने स्लाइड कराया अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसकी थर्ड पोजीशन मैंने B2 यहाँ पे रखी थी, सेकंड पोजीशन यहाँ पे रखी थी। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको मूव कराऊंगा इस B2 पोजीशन से और मैं इसको कोइंसाइड कराऊंगा बेटा A के साथ। मतलब नई पोजीशन जो B2 की होगी वो मैं रखूंगा B3, लेकिन आई विल जस्ट लेट दिस पॉइंट B3 टू सुपर इम्पोज on the location of the point A। इसका मतलब A और B3 की बेटा सेम लोकेशन होगी। ठीक बेटा, अब जरा बताइए जो आर्क APB3 है, यहां तो मैं बता सकता हूं APA है, क्योंकि जब ये पॉइंटर्स आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, यूक्लिड साहब ने बताया था थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब A और B3 आप दो पॉइंटर्स नहीं है बेटा, ये एक ही पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। या तो इनको हम बेटा ए से नाम करेंगे या तो बी से, क्योंकि बेटा ए क्या था, फिक्सेड था, ए का नाम ए ही है। अब मैंने मूव किसको कराया, बी को कराया। अब बी किन के यहां चला गया, ए के यहां चला गया। ठीक है बेटा, अब हमें बेटा बी किससे पहचाना जाएगा, ए की पहचान बी को B3 को मिलेगी, ए की पहचान B3 को मिलेगी। मतलब ये जो B3 पॉइंट है, अब ये B3 नहीं है, ये ए है। अब जरा बताइए जो आर्क APB3 या APA है, इसके एंड पॉइंटर्स को मैं क्या करूंगा, बाय मीन्स ऑफ रेडियस ज्वाइन करूंगा विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने ए को O के साथ, B3 को O के साथ ज्वाइन किया। अब जो यहाँ पे सेक्टर बन रहा है बेटा, वो पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो बेटा मान लीजिए θ2 था, ये θ3 है बेटा। अगर आप लेकिन देखोगे ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो यहां पे इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री है। सही बात, यहां पे जो θ3 है डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन θ2, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 एंड θ1 इज ग्रेटर देन θ। इसका मतलब क्या है, पूरा सर्कल भी एक सेक्टर होता है और उसका जो सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। सर्कल इज इटसेल्फ रिगार्डेड एज अ सेक्टर, सर्कल इज इटसेल्फ रिगार्डेड एज अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जरा बताइए इस सेक्टर में से सेक्टर OAPB, सेक्टर OAPB1, सेक्टर OAPB2, सेक्टर OAPB3, B3 या A ही बताओ, यानी कि पूरा सर्कल, इन चारों सेक्टर्स में से सबसे एरिया किसका ज्यादा होगा? सर सबसे एरिया ज्यादा होगा हमारे चौथे सेक्टर का, यानी कि जो सर्कल खुद है। उसके बाद में इस वाले सेक्टर का, उसके बाद में इस वाले सेक्टर का। लेकिन बेटा अगर मैं इनके सेंट्रल एंगल्स के दरमियान रिलेशन लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं थीटा इज लेस देन θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन बेटा θ3, जो कि बेटा 360 डिग्री के बराबर है। ये सेंट्रल एंगल 360 डिग्री के बराबर है। अब इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है A which is less than A1, area of the second sector which is less than A2, ठीक है, A2 एरिया ऑफ द थर्ड सेक्टर विच इज लेस देन बेटा A3, एरिया ऑफ द फोर्थ सेक्टर A3 से डिनोट करेंगे। लेकिन ये बेटा ये जो एरिया A3 होगा, दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस वेरी सर्कल। अगर इस सर्कल का रेडियस R होगा तो एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस R किसके बराबर आता है, पाई R स्क्वायर। आई मीन टू से दैट A3 इज नथिंग दैट इज पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, जो हमने सेंट्रल एंगल्स को इंक्रीज किया तो वहां पे हमने देखा थीटा इज लेस देन θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। θ3 इस केस में बेटा जो कंप्लीट एंगल सर्कल के सेंटर पर बन रहा है वो है, यानी कि 360 डिग्री है। उसके बाद में मैंने इनके एरियाज को रिलेट करने की कोशिश की, कंपेयर करने की कोशिश की। वहां से मुझे पता चला जो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर है दैट इज लेस देन एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर विच इज A1, A इज लेस देन A1 एंड एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर A1 इज लेस देन एरिया ऑफ द थर्ड सेक्टर A2, दैट इज
A1 is less than A2. After that, area of third sector A2 is less than area of the fourth sector, which is itself the circle having radius say R. यानी कि सर्कल का रेडियस R है। जो एरिया A2 है बेटा वो A3 से कम है। अब जरा बताइए जो A3 है, it is actually the area of the sector which is equivalent to the सर्कल विच इज इक्वलेंट टू द सर्कल हैविंग रेडियस R। अब इस सेक्टर का एरिया किसके बराबर होगा? पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब सर्कल खुद बेटा एक सेक्टर है, सर्कल खुद एक सेक्टर है और उसका सेंट्रल एंगल बेटा 360 डिग्री के बराबर आता है और उसका जो एरिया होगा वो बेटा किसके बराबर आता है? पाई R स्क्वायर के बराबर। यानी कि जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ना फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल, तो वही फॉर्मूला हम इस पूरे सर्कल को अगर हम एज अ सेक्टर ट्रीट करेंगे, इसका एरिया भी उसी के बराबर आएगा, पाई R स्क्वायर के बराबर आएगा। तो एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बेटा ये जो सेंट्रल एंगल्स है इन तीनों सेक्टर्स के और जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज है, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज है। सेंट्रल एंगल्स को नाप दिया जाता है, किसी भी चीज को जब नापा जाता है तो उसको बोला जाता है क्वांटिटी, सही बात। इसी तरीके से एरिया इन तीनों सर्कल्स का हम नाप सकते हैं, तो एरिया भी एक क्वांटिटी है हैविंग यूनिट स्क्वायर यूनिट, सही बात। अब बेटा अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से, मतलब सेंट्रल एंगल के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। आई मीन टू से दैट एरिया ऑफ सेक्टर भी बढ़ रहा है। विद इंक्रीज इन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स there occurs increase in the area of the sectors. Therefore we can say that, dear students, area of the sector is directly proportional to the central angle. इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो हमारे पास में एरिया होगा किसी भी सेक्टर का वो डिपेंड करेगा सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर पर, सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर पर। अगर सेंटर एंगल दो सेक्टर्स के इक्वल हो गए और उनके रेडियस भी इक्वल हो गए तो उनका एरिया इक्वल होगा। यानी कि एक बेहतरीन क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिली बेटा। एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। यानी कि अगर ज्यादा सेंट्रल एंगल होगा किसी सेक्टर का, ठीक है, तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा। अगर किसी सेक्टर का सेंट्रल एंगल कम होगा तो बेटा उसका एरिया भी कम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल, टू द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं आपको दो डिफिनेशन लिखाऊंगा। एक तो बेटा यहां पे सेंट्रल एंगल की डिफिनेशन हम कंसल्ट करेंगे और दूसरी बेटा यही जो रिमार्क हमने यहां पे लिखा या नोट लिखेंगे, ठीक है। आप लिखिए बेटा यहां पे सेंट्रल एंगल से आपका मतलब क्या? सेंट्रल एंगल of a sector. Central angle of a sector, yeah, it is defined as the angle formed by the radius joining the end points of the arc, joining the end pointers of the arc with the center of a circle. It is denoted by थीटा। इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। फिर से मैं यहां पे बताऊंगा आपको सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर से आपका मतलब क्या। तो कि यहां पे इसके डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलने वाली है बेटा, ठीक, इसकी डेफिनेशन आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन तब जाके भी बेटा मैंने इस सेंट्रल एंगल को यहां पे डिफाइन किया। तो सेंट्रल एंगल हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंटर्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डियर स्टूडेंट्स थीटा। जैसे कि अगर हम आर्क एपीबी कंसीडर करेंगे, इस आर्क एपीबी के एंड पॉइंटर्स को बेटा ए और बी को मैं ज्वाइन करूंगा बाय मींस ऑफ रेडियस विद द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि ए और बी ओ को मैंने ज्वाइन किया। अब जो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, इसी को बोला जाता है सेंट्रल एंगल और इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है थीटा से, सही बात। तो ये हमारे पास में सेंट्रल एंगल के डिफिनेशन आई है, ठीक है। अब एक बेटा एक नोट लिखना, नोट, ठीक।
नोट में आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional, is directly proportional to the central angle, to the central angle डियर स्टूडेंट्स, किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाट, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर डियर स्टूडेंट्स। दैट इज डियर स्टूडेंट्स, जो एरिया अगर हम डिनोट करेंगे अपने सेक्टर का ए से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल एंगल थीटा को। सही बात, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखोगे बेटा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखिए बेटा, ध्यान रखना, यूनिटरी मेथड से हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं, ये डिराइव फॉर्मूला हम करेंगे, ठीक बेटा। तो मैंने भी बताया आपको कि जो सर्कल होता है बेटा, सर्कल एक खुद एक सेक्टर होता है। मान लीजिए सर्कल हमारे पास में सेंटर ओ, ठीक है बेटा। अब जो अभी मैंने बताया था, ये O था, ये A था, फिर यहां से B3 लिया था, B3 को मैंने मूव किया था, ठीक है, B को मैंने मूव किया था, वो लास्ट पोजीशन उसकी A आई थी, मतलब ये कोइंसाइड हुए थे, सेंट्रल एंगल बन रहा था कितना, 360 डिग्री। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस R है, इस सेक्टर का एरिया जो आएगा वो पाई R स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। बेटा ये समझ में आया। ऐसे सेक्टर का एरिया, सर्कल खुद एक सेक्टर होता है, पहले तो आपको ये समझना है कि नहीं, क्योंकि बेटा हम दो रेडियस कंसिडर कर सकते हैं सर्कल की जो आपस में ओवरलैप हो रही है। अगर वो ओवरलैप हो रही है फिर हम कंसिडर कर सकते हैं एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। सही बात। अब उस वक्त उस पूरे सेक्टर का जो एरिया होगा वो तो सर्कल के एरिया के बराबर होगा। इट मींस दैट सिंस circle itself can be considered as a sector with central angle 360। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इसका एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। आप यहां पे लिखिए बेटा, सिनस ऊपर आप लिखना बेटा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मान लीजिए इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं जिसका सेंट्रल एंगल थीटा होगा। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एंगल थीटा, जिसका सेंट्रल एंगल थीटा होगा। सही बात। तो यहां से हम आगे जाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट, हमें पता है सर्कल इज इटसेल्फ a sector with central angle theta is equal to, dear students, 360 डिग्री। यानी कि सर्कल खुद एक सेक्टर होता है जिसका सेंट्रल एंगल थीटा 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। नाउ consider a circle with the radius r, जिसका रेडियस हम r करेंगे। क्लियरली याद रखना बेटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल एंगल 360 डिग्री इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहां पे लिखा हमें पता है सर्कल खुद एक सेक्टर ही होता है जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है।
नाउ अब हम कंसिडर करेंगे एक ऐसे सर्कल को जिसका रेडियस r होगा। क्लियरली एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होगा, वो तो खुद सर्कल होगा, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसी, ये इक्वेशन बन गई। लेफ्ट साइड में है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंट्रल एंगल 360 डिग्री और राइट साइड में बेटा पाई आर स्क्वायर है। इसको मैं ट्रीट करूंगा इक्वेशन और आगे इसको ले जाऊंगा, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल बेटा ये 360 डिग्री को मैं ऐसे लिखूंगा, 360 मल्टीपल बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड में पाई आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है मैंने यही वर्ड यहाँ पे कॉपी किए, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 360 डिग्री को खाली मैंने क्या किया, मैंने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 360 मल्टीपल बाय 1 डिग्री लिखा। 1 डिग्री मल्टीपल बाय 360 दैट इज 360 डिग्री राइट साइड में, फिर इक्वल टू साइन अपनी, फिर पाई आर स्क्वायर राइट साइड में। अब जरा बताइए, तो इक्वेशन है, इक्वेशन में इस लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 360 जो है ना बेटा वो 1 डिग्री के साथ मल्टीपल में है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट के तौर पे आती है, अगर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, वो क्या हो जाती है, दैट इज गेटिंग डिवाइड दियर। तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो डिवाइड होता है वो क्वांटिटी वहां पे, एज ए रिजल्ट 360 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा राइट साइड में, वो वहां पे डिवाइड होगी पाई आर स्क्वायर को। तो यहां पे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल बेटा यहां पे मैं क्या लिखूंगा, खाली रखूंगा लेफ्ट साइड में 1 डिग्री, 360 को मैं बेटा राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, यहां पे डिवाइड होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। बेटा डिग्री यहीं पे रहा, 360 को मैंने ट्रांसपोज किया इक्वेशन के राइट साइड में, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल है तो राइट साइड में डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला ऐसे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 1 डिग्री, यानी कि ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा, खाली 1 डिग्री होगा, उसका एरिया किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। इट इज नॉट डिग्री हियर, इट इज मेयरली अ रियल नंबर, इसका नेचर रियल नंबर है। यानी कि ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा, उसका एरिया आता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। अब जरा बताइए, यूनिटरी मेथड आपने सुना होगा, इसका नाम यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारे पास में क्वांटिटी होती है, एक यूनिट क्वांटिटी का हम पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर उस क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स होंगे उनका वैल्यू हम सिंपली नंबर ऑफ क्वांटिटीज को विद द वैल्यू ऑफ द यूनिट क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट मारते हैं, वहां से हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटिटीज का वैल्यू निकल के आता है। मान लीजिए हमारे पास में एक नोटबुक है, नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, एक नोटबुक बिकती है 10 रुपए में। ठीक है बेटा, अब जरा बताइए, एक नोटबुक अगर बिकती है 10 रुपए में, 2 नोटबुक कितने में बिकेगी, सर यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे, एक नोटबुक बिकती है 10 रुपए में, 2 नोटबुक बिकेगी बेटा 2 into 10 रुपीज, दैट इज बेटा 20 रुपीज। 3 नोटबुक कितनी रकम में बिक जाएगी, सर 3 into 10 दैट इज 30 रुपीज। अब जरा बताइए, अगर आपके पास में n नंबर ऑफ नोटबुक्स है, n नंबर ऑफ नोटबुक्स है और एक नोटबुक बिकती है 10 रुपए में, तो n नोटबुक बेटा n into 10 यानी कि n 10 times n रुपीज में बिकेगी। 10 times n will be actually the cost price of n number of notebooks. If the cost price of one notebook is 10 rupees, then the cost price of 2 notebooks will be 2 into 10, 20 rupees. Then the cost price of 3 notebooks will be equal to 3 into 10, that is 30 rupees. And the cost price of in general n number of notebooks will be equal to n into 10, which is equal to 10n rupees. 10n rupees. अब जरा बताइए, यही यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे सेक्टर का एरिया ठीक है, जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा, जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा, वो कौन सा एरिया, उसका कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा, उसका एरिया आता है बेटा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। अब ऐसे सेक्टर का एरिया कितना होगा जिसका सेंट्रल एंगल 2 डिग्री होगा,
सर 2 को हम मल्टीपल करेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा 360, ठीक है बेटा। यानी कि ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 2 डिग्री होगा उसका एरिया आएगा 2 इंटू यानी कि डबल होगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल बेटा 2 डिग्री नहीं होगा 3 डिग्री होगा, उसका एरिया कितना होगा सर, उसका एरिया होगा 3 मल्टीपल बाई area of the sector with central angle 1 degree, that is pi r square divided by 360। इसी तरीके से बेटा और मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताइए आप ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 4 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, उसका एरिया कितना होगा सर आप बताओगे। सेंट्रल एंगल जो थीटा है बेटा वो 4 डिग्री है। अब हमें पता है ऐसे सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा उसका एरिया इतना होता है, तो 4 डिग्री वाले सेंट्रल एंगल 4 डिग्री वाले सेक्टर का 4 डिग्री वाले सेक्टर का जो बेटा एरिया आएगा वो आएगा बेटा 4 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री। इन जनरल अगर हमारे पास में कोई सेक्टर है, मान लीजिए ये सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है, जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है, उसका कितना एरिया होगा सर। अगर हमारे पास में ऐसा कोई सेक्टर है जिसका डिग्री मेजर कितना होगा थीटा होगा, उसका एरिया कितना होगा थीटा मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। तो दिस विल बी एक्चुअली द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंटर एंगल थीटा। This is the area of the sector with center angle 1 degree. This is the area of the sector with central angle 2 degree. This is the area of the sector with central angle 4 degree. And this will be the area of the sector with central angle, dear students, theta. जैसे मैंने बताया था अभी n नंबर ऑफ नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जैसे आपने बताया n into 10 which is equal to 10 नंबर ऑफ रुपीज। इसी तरीके से एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा विल बी इक्वल टू थीटा into पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम आगे एक लाइन लिखेंगे, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे ऊपर लिखना है हेडिंग जो मैंने लिखी थी, एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा, ठीक। डियर स्टूडेंट्स इसको आप कॉपी करना, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स थीटा मल्टीपल बाई एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 1 डिग्री, दैट इज डियर स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, इज नॉट डिग्री, इट इज 360, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मेंड करेंगे, मैं थीटा को ही 360 डिवाइड करूंगा। अगर आप बुक पे देखोगे कुछ ऐसी फॉर्मूला है, और यहां पे हम मल्टीपल करेंगे इसको पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल थीटा होगा उसका एरिया होगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा मैंने अभी बताया था आपको, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना वो थीटा के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, यानी कि जितना ज्यादा थीटा का वैल्यू होगा उतना ज्यादा एरिया ऑफ सेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमारे पास में मिली, यहाँ फॉर्मूला मिली, यहाँ पे हमें पता चलता है कि एरिया ऑफ सेक्टर दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज 360 कांस्टेंट है, इससे बेटा चेंज नहीं होगा एरिया ऑफ सेक्टर। पाई भी बेटा कांस्टेंट है, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे अननोन से जो पैरामीटर्स है जिनकी वजह से एरिया चेंज हो सकता है हमारे सेक्टर का, वो एक तो सेंट्रल एंगल थीटा है और बेटा है रेडियस ऑफ द सेक्टर या रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका बेटा सेक्टर पार्ट होगा। ध्यान रखना बेटा, here the area of the sector is totally expressible, here the area of the sector is totally expressible in terms of the थीटा, सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास में रेडियस ऑफ सर्कल पता है और सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर पता है, यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट वेरी सेक्टर, यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट सेक्टर। ओके बेटा, अब देखिए बेटा यहां से हम अब क्या करेंगे, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, या आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, या तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में ये कंसेप्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। तो ऊपर आप हेडिंग लिखना, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल
सेंट्रल एंगल थीटा, यानी कि ऐसे सेक्टर की आर्क लेंथ कितनी होगी, मसलन आर्क लेंथ यहाँ पे माइनर आर्क लेंथ है एपीबी, मेजर आर्क लेंथ है एक्यूबी, और सेक्टर ये है जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है, तो इस आर्क लेंथ एपीबी की लेंथ कितनी होगी जिसका सेंट्रल एंगल बेटा थीटा होगा, इसकी आर्क लेंथ निकालनी है बेटा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था, हमें पता है सर्कल खुद क्या होता है बेटा, एक सेक्टर होता है जिसका सेंट्रल एंगल बेटा 360 डिग्री होता है। अब जरा बताएं, अगर ये सर्कल खुद एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, इसका सर्कमफेरेंस आएगा c इक्वल टू 2 पाई r, किसको पता नहीं है। इसका मतलब ऐसे सेक्टर की आर्क लेंथ जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होगा उसकी आर्क लेंथ 2 पाई r होती है। तो यही यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी बेटा यही चीज हम लिखने वाले, वी नो दैट सर्कल CIRCLE circle is itself a sector with central angle 360 डिग्री, यहां कोई लिखेगा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, आप मेयरली लिखो 360 डिग्री। सर्कल खुद एक सेक्टर होता है जिसका बेटा सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है। नाउ लेट अस कंसीडर अ सर्कल, CONSIDER, कंसीडर a सर्कल विद रेडियस r। अब हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे, मान लीजिए यही वो सर्कल है जिसका रेडियस r है। क्लियरली लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल क्लियरली लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल, यहां विद सेंट्रल एंगल लिखेंगे, विद सेंट्रल एंगल बेटा 360 डिग्री। यानी कि हमने यहां पे बताया सर्कल खुद एक सेक्टर होता है। अब ऐसे सेक्टर की आर्क लेंथ कितनी होगी जिसका सेंट्रल एंगल बेटा 360 डिग्री होगा, उसकी आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी। यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब बेटा वो c के बराबर आएगा, जो कि बेटा आएगा 2 पाई r। चलिए बेटा ये मैं रब करता हूं, मैं डायरेक्ट से लिखूंगा 2 पाई r। ऐसे सेक्टर की आर्क लेंथ जिसका सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होगा उसकी आर्क लेंथ बेटा आएगी 2 पाई r। किसके बराबर आएगी, 2 पाई r। ठीक, तो ये आपको आया समझ में। ठीक, तो यहां पे बेटा अब बन गई हमारे पास में इक्वेशन जैसे पीछे की थी। तो यहां पे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल बेटा इस 360 डिग्री को मैं फिर से एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखूंगा। 360 मल्टीपल बाय डियर स्टूडेंट्स 1 डिग्री, वो कितना आएगा, राइट साइड में यही 2 पाई r होगा। मैंने बेटा बिल्कुल यही इक्वेशन कॉपी की, खाली मैंने 360 डिग्री को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखा, एक तो 360 और फिर लिखा बेटा 1 डिग्री। अब हम आगे जाएंगे बेटा, ये 360 इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, मल्टीपल है। अगर राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किसको डिवाइड होगा, 2 पाई r को, सही बात। तो यहां पे हम कंसीडर करने वाले हैं आगे इसको, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल कितना बेटा, 1 डिग्री। 360 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि 360 लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, मल्टीपल है, तो राइट साइड में 2 पाई r को बेटा जी ये हो जाएगा डिवाइड। दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल 1 डिग्री डियर स्टूडेंट, सॉरी,
लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 1 डिग्री, उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा 2 पाई आर डिवाइड बाय 360, सॉरी ये डिग्री नहीं 360 है। तो अब क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसकी यूनिट्स क्या होगी बेटा सेंटीमीटर, मीटर, स्क्वायर मीटर, तो यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट्स। जो पीछे मैंने फार्मूला निकाली थी ना थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, उसको आप बेटा लिखना यूनिट्स, क्योंकि वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, उसको लिखना स्क्वायर यूनिट्स वहां पे राइट साइड में स्क्वायर यूनिट्स, ठीक बेटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास में आ गया। अब जरा बताएं, हमें यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू मिला, अगर हमें यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना होगा, अगर हमें यूनिट क्वांटिटी का पता वैल्यू है, तो वी कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज होगी उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे कि नोटबुक की मैं मिसाल दे दूंगा फिर से, और हमारे पास में कोई नोटबुक है जिसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है, 2 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 10 होगा, 3 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस 3 इंटू 10 होगा, n नंबर ऑफ नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस n इंटू 10 यानी कि 10n होगा। वैसे ही बेटा ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा, उसकी आर्क लेंगे 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 होगा। ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल ऑफ 2 होगा, उसकी आर्क लेंथ होगी 2 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 3 डिग्री होगा, उसकी आर्क लेंथ होगी 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल जनरल में थीटा होगा, उसकी आर्क लेंथ होगी थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। तो वही हम लिखने वाले हैं। देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स, लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये सर्कल इसके लिए लिखना, आप ड्रा करना पहले ही, ठीक। तो इसको मैं यहां पे रब करता हूं। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल बेटा 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, और वो आर्क लेंगे किसके बराबर आएगी, थीटा मल्टीप्लाई दिस वेरी क्वांटिटी, दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट 360। अब बेटा ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको बुक में ऐसे मिलने वाली, इसको लिखना इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे इसके जो यूनिट्स होगी वो बिल्कुल वही होगी जो कि लेंथ के यूनिट्स है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सो एंड सो फोर्थ। सही बात। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। यानी कि फिर से जो आर्क लेंथ किसी भी सेक्टर की है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन 2 क्वांटिटीज, वन इज डियर स्टूडेंट्स थीटा और दूसरा है रेडियस ऑफ सर्कल। और हमें रेडियस किसी सर्कल का पता है और सेंट्रल एंगल पता है, वी कैन फाइंड आउट इट इज आर्क लेंथ। सिमिलरली इफ वी नो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सर्कल, वी कैन फाइंड आउट इट इज एरिया। यानी कि सेक्टर का एरिया और सेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ निकालना, ठीक है। तो वो बेटा हम निकाल सकते हैं इफ वी हैव 2 क्वांटिटीज इन हैंड, दैट इज डियर स्टूडेंट सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक बेटा। कंसेप्ट ये था लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, तो इसको हमने डिराइव किया यहाँ पे, ठीक। अब हम आगे जाएंगे और आगे हम करने वाले हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखिए बेटा सेगमेंट से हमारा मतलब वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन द आर्क एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आएगा, या बिटवीन द कॉर्ड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आएगा, ठीक। तो ये तो हमने इसको डिस्कस किया, आई डोंट रिक्वायर इट, ठीक है। तो अब हम सेगमेंट की बात करेंगे। सेगमेंट हमारे पास में होता है वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन कॉर्ड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आएगा। और हम आर्क ले लेंगे एपीबी, तो ये जो सेगमेंट होगा ये माइनस सेगमेंट होगा एपीबी। जब भी हमें सेगमेंट का एरिया पूछा जाएगा निकालने को, तो इसका मतलब हमें किसका एरिया निकालना है, माइनस सेगमेंट का, एपीबी का। बेटा इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ यानी कि ओ के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक। फिर ये फिगर बन गई। अब ये क्या है, ओ ए पी बी, इट इज द सेक्टर बिकॉज ओ ए और ओ बी दे आर एक्चुअली द रेडियस कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क बाय मींस ऑफ विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में ओ ए पी बन गया सेक्टर। हर एक सेक्टर का अपना सेंट्रल एंगल होता है, मान लीजिए थीटा। अच्छा अगर ये सेक्टर है तो ओ ए क्या लगता है, इसका रेडियस, ओ बी क्या लगता है रेडियस। अगर ये आर है, ये भी तो आर है। आप मुझे बता सकते हो इस सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया कितना होगा। सर एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट हमारे पास में सेंट्रल एंगल और रेडियस पता होना चाहिए। सेंट्रल एंगल थीटा है, रेडियस आर है, इसका एरिया कितना आएगा। सर इसका एरिया ओ ए पी बी का,
ओ ए पी बी सेक्टर का जो ओ ए पी बी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, वो किसके बराबर आएगा? दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब मुझे बताए एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी जो ये शेडेड रीजन है, दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी या ए ओ बी। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या निकालेंगे, ये अनशेडेड पोर्शन, वो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। ठीक है बेटा, क्लियरली यहां पे आप लिखना नोट, एक नोट लिखना यार, हमारे कुछ लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट SEGMENT, एरिया ऑफ सेगमेंट APB। कैसे सेगमेंट का नाम करेंगे बेटा? APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? OAPB माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक बेटा, तो ये तरीका रहेगा हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमारे पास में सेपरेट फार्मूला नहीं है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज टोटली एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इफ वी हैव इन हैंड theta, that is central angle of the sector, and radius, that is the radius of the sector, we can find out the area of segment. Simply we have to find out the area of sector, we have to find out this very difference, that is area of sector OAPB में से हमें निकालना है area of triangle AOB। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त हम आपको बताएंगे इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वहां से हमारे पास में निकल के आएगा अपने इस सेगमेंट का एरिया। ठीक डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में ये एक्सरसाइज है बेटा। एक्सरसाइज में कुल मिला के अगर हमारे पास में देखा जाएगा, इसके बन रही है 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन गोबर ध्यान थे जो 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज है, और इन 14 क्वेश्चन का रखबो डिवाइड 2 सेक्शन में, 2 ग्रुपन में आ गई 3 क्वेश्चन यमन मन असी प्रश्न एरिया ऑफ सेक्टर के, और दूसरे वो क्वेश्चन बेटा जिनमें हमें पूछा जाएगा मिक्सिंग में कि या तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। यानी कि ऐसे सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जिनमें हमें पूछा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, वो हम पहले करने वाले हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, वो पहला वाला हो सकता है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, फिर छोड़ के कुछ, फिर और एक हो सकता है 8, फिर सही बात। तो उसके बाद में बेटा वो सभी क्वेश्चन है जिनमें हमें पूछा जाएगा सेगमेंट का एरिया निकालो, तो उनको हम सेपरेटली कंसिडर करेंगे। यानी कि आई विल डिवाइड दिस होल एक्सरसाइज इनटू 2 पार्ट्स। One part will consist of all those questions in which we are being asked to find out the area of sector, and another group of questions of this very exercise will be those questions in which we are being asked to find out the area of this segment. ओके, तो यहां पे पहले हम सेक्टर वाले क्वेश्चन सीखना चाहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, जब आप बार बार सेक्टर का एरिया निकालोगे, सेक्टर का एरिया निकालोगे, तो आपको एक मास्टरी आपको मिल जाएगी। यू विल बी अटेन द मास्टरी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर। सिमिलरली जब आपको सेगमेंट का एरिया निकाला जाएगा, मैं आपको एक तरीका पहले ही बताऊंगा, फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सेम प्रोसीजर चलेगा। इनफैक्ट जो पहले ग्रुप के क्वेश्चंस होंगे दे विल बी सिस्टर प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, और जो दूसरे ग्रुप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होगा वो भी सिस्टर प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर होगी। सही बात, मैंने आपको बताया था सिस्टर प्रॉब्लम्स का मतलब जिनका सॉल्व करने का तरीका एक जैसा होता है। सही बात, तो उससे हमारे पास में ये एक्सरसाइज बन जाएगी सिंपल। चले बेटा, एक्सरसाइज 12.2 को कंसिडर करने वाले हम। पहला ही क्वेश्चन आज हम देखेंगे, लेकिन ऊपर दी गई है हेडिंग अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। बेटा अगर नहीं बताया गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करो, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा फॉर ग्रांटेड हमें पाई का वैल्यू 22/7 ही प्लग करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बेटा हमारे पास में एक सेक्टर का एरिया बताया गया है कि आप निकालो एक सेक्टर का एरिया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल थीटा हमारे पास में 60 डिग्री। ठीक, तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे हम लिखेंगे बेटा गिवन रेडियस
radius and central angle of sector, यानी कि सेंट्रल रेडियस और सेंट्रल एंगल हमारे सेक्टर का क्या है, तो रेडियस r से डिनोट करेंगे जो कि बेटा 6 सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल बेटा थीटा से डिनोट करेंगे जो कि बेटा 60 डिग्री है। अब जरा बताइए, therefore एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर इज इक्वल टू, अब जरा बताइए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी मैंने बताई थी, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें नहीं बताया गया है कि आप इसका वैल्यू 3.14 इस्तेमाल कीजिए, इसका मतलब फॉर्मूला पाई का वैल्यू 22/7 ही होगा, तो थीटा के बदले बेटा अपना वैल्यू 60 डिग्री होगा। अब उसके बाद में नीचे क्या है बेटा 360, इसको विदाउट यूनिट इस्तेमाल करना है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू मल्टीपल बाय क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मतलब आर स्क्वायर का मतलब बेटा 6 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीपल बाय 6। ये समझ में आया? ठीक बेटा, तो यहां से मैं इस चीज को रब करता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 6 जार 36, 6 1 जार और 6 1 जार 6 आएगा। अब यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 22/7 मल्टीपल बाय 6, 6 2 जार हो गया बेटा 12, एक चलेगा कैरी, 6 2 जार 12 और 12 प्लस 1 वो बेटा 13 आएगी, 132/7। लेकिन क्योंकि बेटा रेडियस दिया गया था सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहने देंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर इज डियर स्टूडेंट दैट इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now dear students, we shall move towards the question number 2 of exercise 12.2. So let us read it. Find the area of the quadrant of a circle of radius 22 centimeter. हमारे पास में एक क्वाड्रेंट दिया गया है सर्कल का क्वाड्रेंट दिया गया है और जिसका सर्कमफेरेंस बेटा 22 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें बताया गया है कि उसका एरिया कितना है। यानी कि एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दिया गया है जिसका सर्कमफेरेंस कुल मिला के 22 सेंटीमीटर है और हमें बताया गया है इस क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया कितना है। बेटा ये जो नाम है ना क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट का नाम आपने पहले भी सुन के रखा है। यानी कि ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम असल में a system of two mutually perpendicular number lines होता है। One is drawn horizontally x o x dash which is known as x axis, another is drawn vertically y o y dash which is known as y axis. Their point of intersection is the origin of the coordinate system. फिर हमने आपको बताया था ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो x o y, दूसरा y o x dash, तीसरा x o y dash, चौथा है बेटा y dash o x। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को बोला जाता है बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? QUADRANT क्वाड्रेंट। अब जरा बताइए ये जो नंबर लाइन्स आपस में कट कर रही है एट पॉइंट ओ, ये जो 4 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं क्या इनका मेजर 90 डिग्री नहीं है? यस ऑफ कोर्स, ऑल दिस 4 एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूंगा जिसका सेंटर में ले लूंगा बेटा ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसका रेडियस मान लीजिए हम ले लेंगे OA और OB इक्वल टू R, यानी कि इस सर्कल का रेडियस मैंने R कंसिडर किया। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर मैंने ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लिया और बेटा उनका रेडियस मैंने चूज किया R यूनिट। ठीक, अब मान लीजिए ये जो सर्कल है ना ये y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस को y को एट पॉइंट A कट कर रहा है और पॉजिटिव x एक्सिस को एट पॉइंट B कट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे AB आर्क के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लूंगा P। अब जरा बताइए क्या ये OAPB
क्या ये सर्कुलर रीजन है? ऑफ कोर्स। क्या ये सर्कुलर रीजन बिटवीन द टू रेडिया एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है? यस ऑफ कोर्स। देयरफॉर ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, यानी कि OAPB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस r, और जो इसका सेंट्रल एंगल है थीटा, वो बेटा यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, यानी कि बेटा ये जो सेक्टर OAPB है, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल से आज के बाद आपका मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर हो सकता है जिसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ऐसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, उस क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का आप एरिया निकालिए, लेकिन बेटा उस सर्कल का सरकमफेरेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए, अगर सर्कल का रेडियस r होगा तो सर्कल के सरकमफेरेंस के लिए अलजेब्रिक फार्मूला क्या है? 2 पाई r। 2 पाई r को हम कंपेयर करेंगे 22 के साथ, वहां से रेडियस निकल के आएगा। सेंट्रल एंगल क्वाड्रेंट का हमेशा से हमें बाय डेफिनेशन ही पता चलता है वो 90 डिग्री है, मतलब रेडियस भी पता होगा, सेंट्रल एंगल भी पता होगा, तो एरिया इस क्वाड्रेंट का बेटा निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन circumference of the circle, circumference of a circle C is equal to बेटा 22 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। ठीक, हम लिखेंगे let r be the radius of circle, let r be the radius of circle। ठीक, क्लियरली जो सर्कमफेरेंस C होगा, क्लियरली C इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट सर्कमफेरेंस के बदले हम लिखेंगे अपना वैल्यू 22 इज इक्वल टू 2 पाई r, है कि नहीं? और r 2 पाई r इज इक्वल टू बेटा 22। मैंने इस इक्वेशन के साइड्स को इंटरचेंज किया, विच इंप्लाइज दैट बेटा जो r होगा वो 22 अपॉन 2 पाई होगा। 2 1 जा 2, 11 जा 22, implies that radius of circle is here, that is 11 divided by pi, लेकिन क्या? सेंटीमीटर। बेटा हमारे सर्कल का जो रेडियस यहाँ पे है, जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 11 डिवाइड बाय पाई सेंटीमीटर है। याद रखना 11 डिवाइड बाय पाई सेंटीमीटर है। ठीक बेटा, इसको हमें ऐसे ही रखेंगे। क्लियरली या ऑब्वियसली लिखेंगे OBVIOUSLY, ऑब्वियसली रेडियस एंड सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विल बी, यानी कि रेडियस और बेटा सेंट्रल एंगल हमारे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का क्या होगा? रेडियस तो हमने निकाला, वही जो सर्कल का रेडियस होगा वही क्वाड्रेंट का भी रेडियस होगा, सही बात। और जो सेंट्रल एंगल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम यहां पे अपने क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, सही बात। तो यहां से हम ऐसे ये करेंगे, यहां पे निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ required quadrant, QUADRANT, quadrant of circle will be that is, dear students, theta divided by 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास में फॉर्मूला है ना फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी सेक्टर। जो क्वाड्रेंट होता है वो भी एक सेक्टर ही होता है, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो कितना आएगा? 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीपल बाई पाई, और आर का वैल्यू कितना है? 11 डिवाइड बाई पाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 11 डिवाइड बाई पाई मल्टीपल बाई 11 डिवाइड बाई पाई, क्योंकि r का वैल्यू 11 डिवाइड बाई पाई है, तो r स्क्वायर आएगा 11 डिवाइड बाई पाई मल्टीपल बाई 11 डिवाइड बाई पाई। अब जो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा 36। ये आएगा बेटा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4
फिर आएगा मल्टीपल बाई, ठीक है बेटा। यहाँ पे आएगा 11 डिवाइड 1 आता, ठीक, तो 11 ही लिखेंगे, पाई 1 जार असल में हुआ ये, ठीक है। मल्टीपल करेंगे 11 डिवाइड बाई, बेटा ये जो पाई है ना इसका मैं वैल्यू यहाँ, अच्छा फिर पहले पाई ही लिखता हूँ, चलिए पाई लिखते हैं, ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि ये लाइन में यहाँ से रब करता हूँ। ओके बेटा, चलिए बेटा ये लाइन में यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक। अब आगे जाके हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 डिवाइड बाई 4 ऐसे लिखेंगे, 11 ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल बाई बेटा यहाँ पे लिखेंगे 11 डिवाइड बाई, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, सही बात। वो 1 डिवाइड बाई 4 आएगा, मल्टीपल बाई 11 आएगा, मल्टीपल बाई 11 आएगा, मल्टीपल बाई इसका रेसिप्रोकल 7 डिवाइड बाई 22, 11 1 जार 11 2 जार 22 होगा, ठीक बेटा, ये 1 जार हुआ। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आया, 1 डिवाइड बाई 4, ये आएगा अपना आएगा 11, यहाँ पे 1 है तो ये इसको नहीं लिखेंगे, ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7 डिवाइड बाई 2, अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ, 11 को 7 के साथ, 11 7 जार, चलो बेटा यहाँ पे लिखते हैं 11 7 जार 77, क्योंकि 7 कैरी प्लस कैरी 7, 11 7 जार 77, बेटा कैरी वैरी कुछ नहीं आएगा, सॉरी, 11 1 जार 11 इंटू 7 दैट इज 77 डिवाइड बाई बेटा 2 4 जार 8, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ विद रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।